Hello dear students, I am Garima Miss. Welcome back to my English lecture. This is the third and the last lecture of the chapter 1.6 Tiger Hills, written by General Ved Prakash Malik. In the last lecture we had seen line by line explanation of the chapter and also the hard words of it, but the chapter is not yet complete. So today we will complete line by line explanation of this chapter, which is listed in this slide. Firstly, we are going to do complete whole chapter, that is line by line explanation of this chapter, and simultaneously with that we are going to see the hard words and their meaning. So Tiger Hill, if you would see, this is the extract actually written by General Ved Prakash Malik, and this extract is taken from General Ved Prakash Malik book कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री. जनरल वेद प्रकाश मलिक जो थे, जो पूरे मिशन के हेड थे, उन्होंने एक बुक लिखा था कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, और उसमें एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है टाइगर हिल के ऊपर. तो वो पूरा स्टोरी वहाँ से लिया गया है. टाइगर हिल अगर आप देखो, इट इज़ अबाउट सैल्यूटिंग आवर इंडियन आर्मी दैट हाउ दे हैड स्ट्रांगली फॉट और रिकैप्चर द लैंड taken away by Pakistani soldiers. Okay, here also we will see how Indian soldiers with their strong strategic power, उन्होंने इतना अच्छा strategy बनाया कि they had given a strong deceive to the Pakistani soldiers and militants and recapture the Indian land, that is Kargil as well as Tiger Hill. Okay, so it's a pride moment for every Indian reader to read this book, टू रीड दिस चैप्टर. हम सबको गर्व फील होगा ये चैप्टर जब हम रीड करेंगे, और गर्व से हम ये कह सकेंगे कि हमारा टाइगर हिल हमारा है, और कारगिल वॉर में जो हमने रिकैप्चर किया है, इट इज़ ओनली वी कैन ब्रेवली से दैट efforts go to our Indian soldiers. So it's a fine masterpiece written by General Ved Prakash Malik to make the readers understand the sacrifices done by the soldiers for our motherland, and it teaches to our upcoming children. ये चैप्टर हमको और एक चीज़ सिखा के जाता है, हमारे आने वाले जनरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं जिनका ड्रीम है टू बी द पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी, टू बी द पार्ट ऑफ फोर्स. when they will read this chapter, they will definitely think that even I have to do something for my motherland, something for my nation. So thinking this in mind, let's start. Where were we? The place where we stopped, from there we will start. So please see page number 56, second last paragraph. At this stage, 8th Mountain Division realized that it would not be possible to evict. It means to show the enemy from Tiger Hill completely as long as supply lines along the western spur were intact. Mohinder Puri and MPS Bajwa then issued orders to aid Sikh to attack and capture Helmet and India Gate, both located on the western spur. On that, enemy reinforcements to Tiger Hill top could be prevented. The move was also intended to cut off the enemy's supply route. So here you can see it is properly given कि जब बहुत आगे तक जा चुका था फाइट. ओके, 4 जुलाई आ गया है, और 8 माउंटेन डिवीज़न जितने भी बाइफरकेटेड हमारे देश के जो सोल्जर्स थे, वो लोग डे बाय डे they are conquering or killing the enemies and recapturing the Tiger Hill. But still you can see at the western spur the problem was intact. अभी भी वैसे ही intact बना हुआ था कि अभी भी वहाँ पे लग रहा था कि पाकिस्तानी सोल्जर्स और टेररिस्ट स्टिल हाइडिंग. तो क्या हुआ बताएं, मोहिंदर पुरी और MPS बाजवा. मोहिंदर पुरी, if you would see, was a lieutenant commander of this mission, Mohinder Puri, as well as brigadier who is the leading this commanding this whole you can see incidents to the soldiers and giving his guidelines, that is MPS Bajwa, who was even present at this occasion, at this situation, and looking after each and everything what is happening to our soldiers.
कमांडेड, वो लोगों ने अब डायरेक्ट कमांड दिया हमारे देश के 8 सिख रेजिमेंट के जो जवान थे, सोल्जर्स को, दैट गो एंड अटैक एंड रिकैप्चर हेलमेट एंड इंडिया गेट। हेलमेट देख रहे हो आप पिक्चर में, और इंडिया गेट, ये दोनों को जाके वापस से कैप्चर करो। ओके, एंड दैट वाज द स्टेटमेंट इशूड बाय द हेड, दैट इज़ MPS बाजवा। तो MPS बाजवा ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया कि डायरेक्ट जाओ, और अब टाइम आ गया कि हेलमेट और इंडिया शुड बी अंडर इंडियाज़ ओन मदरलैंड। तो वहाँ पे जाके रिकैप्चर करना है एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम द टॉप, ये भी बताया। द मूव वॉज ऑल्सो इंटेंडेड टू कट ऑफ द एनिमी सप्लाई रूट। और अगर ऐसा करते हैं ना तो जहाँ से वेपन्स वगैरह आ रहा था एनिमीज़ को सप्लाई हो रहा था, दैट इज़ टाइगर हिल पे इतना सारा वेपन्स कहाँ से आ रहा था, हेलमेट और यू कैन सी इंडिया गेट से। तो अगर हम उनको वेपन्स ही नहीं सप्लाई होगा तो वो क्या मार पाएंगे हमको। तो इनका टारगेट था कि पहले जहाँ से वेपन सप्लाई हो रहा है दैट रूट शुड बी ब्लॉक्ड एंड शुड बी रूल्ड ओवर बाय आवर कंट्री और रीच्ड और रिकैप्चर्ड बाय आवर कंट्री इंडिया। देन वी कैन डायरेक्टली climb up the mountain Tiger Hill and reach to the top and throw these militants of Pakistan to their country. Next paragraph of page number 56. The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers and the approach to the spur underline the word, मैंने पहले भी बताया है और फिर से बता रही हूँ। spur meaning an area of high ground extending from mountain or हिल, माउंटेनरी एरिया से थोड़ा ऊंचा उठ के, और मैंने बताया था टाइगर हिल थोड़ा ऊंचा उठ के ये एरिया है, तो वो एरिया ही पूरा पकड़ो तो वैसा ही है। अब वो एरिया में क्लाइंब अप करना माउंटेन इज़ वेरी टफ। आवर 8 सिख वॉज डिप्लॉयड अंडरलाइन द वर्ड, इट मीन्स दे मूव्ड इन, ओके, ले अलॉन्ग अ स्टिप रॉक फेस। इतना क्लिफ, इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था, बट स्टिल दे आर मूविंग अहेड विद देयर गन्स इन देयर हैंड। एंड एडहॉक यहाँ पर मीनिंग है व्हेन नेसेसरी और नीडेड, जब ज़रूरत पड़ने पर। ये जो 8 सिख जवान थे, लेड बाय मेजर राजेंद्र सिंह एंड लेफ्टिनेंट RK शेरावत, comprising 4 JCOs, means joint commanders, officers, and 52 soldiers, climbed this rock face under the poor visibility conditions and was able to capture India Gate after a tough fight. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. Platoon means a group of military forces of our country India. He was engaged in hand-to-hand fighting till the end and was also responsible for beating back a counter attack. अब देखो सामने सामने अब लड़ाई शुरू हो गई। जैसे ही MPS बाजवा ने कमांड किया कि अब जाके इंडिया गेट और हेलमेट को कैप्चर करो, वहाँ पे आप देखोगे 8 सिख रेजिमेंट के जो लोग थे उनको भेजा गया, जिसमें लीड कर रहे थे उनके टीम को राजेंद्र सिंह, लेफ्टिनेंट RK शेरावत। ये लोगों ने अपने साथ 52 और सोल्जर्स को रखा, और ये सब विद देयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क and a strong willpower in their eyes, moving ahead, thinking that they are going to win the battlefield and thus capturing the India Gate in a tough fight with the Pakistani soldiers. पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ एक टफ फाइट करके वो लोग एक के बाद एक ये एरिया को कैप्चर करते चले जा रहे थे। इतना ही नहीं, सूबेदार निर्मल सिंह जो थे उनके पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्रुप था, और वो लोग हैंड टू हैंड फाइट कर रहे थे विद द पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स। और जैसे वो लोग काउंटर अटैक कर रहे थे, आर कंट्री इंडिया इज़ इवन गिविंग अप सेम काउंटर अटैक टू देम। जैसे वो लोग एक ग्रेनेड मार रहे थे तो इंडिया कंट्री 2 मार रही थी। इस तरीके से ये होता है काउंटर अटैक, गिविंग अ टफ फाइट टू दिस पाकिस्तानी सोल्जर्स, एंड दिस इज़ डन बाय आर ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आर कंट्री इंडिया। टर्न टू पेज नंबर 57. Despite heavy casualties, 8 Sikh exploited its success up to Helmet and captured this objective on 5th of July. Finally, जैसे ही MPS बाजवा ने 4th जुलाई को इन लोगों को ऑर्डर दिया 8 सिख रेजिमेंट के सोल्जर्स को कि गो एंड रिकैप्चर द हेलमेट एंड इंडिया गेट,
8 Sikh people were able to recapture the helmet and the day was 5th of July. मतलब एक दिन के अंदर इन लोगों ने पूरा you can see सोल्जर्स का पूरा मिलिटेंट्स और टेररिस्ट जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे उनका सफाया किया, क्लियर किया एंड रिकैप्चर द नन अदर देन हेलमेट that is belongs to our country India. Helmet, that is the mountaineering area name it is. Okay. Next paragraph of page number 57. The enemy launched 2 counter attacks with 40 to 50 personnel, but 8 Sikh fought gallantly and was able to repulse them. So you can see gallantry, please underline the word, write down meaning bravely, and repulse meaning by force drive back. तो यहाँ पे आप देखोगे एनिमी मीन्स जो पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिटेंट्स थे वो लोगों ने बहुत काउंटर अटैक्स किया. मैंने कहा ना उनके पास बहुत सारा डिस्ट्रक्टिव मटेरियल्स लेकर आए थे थ्रू इंडिया गेट एंड दैट वे, उस रोड से वो बहुत लेकर आए थे. तो वो डे बाय डे मीन्स वन आफ्टर अनदर दे आर थ्रोइंग एंड दे आर destroying our Indian you can see hubs where our Indian soldiers were hiding. वो लोग भी उतना ही काउंटर अटैक कर रहे थे. बट जो 8 सिख थे वो तो एकदम एक ब्रेव पर्सन की तरह दे जस्ट मूव अहेड. रिपल्स मीन्स होता है फोर्स बैक एंड ड्राइव बैक. इतने ज़ोर से वो लोग आगे बढ़े और जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स और सोल्जर्स थे उनको जस्ट थ्रो किया और they just killed their places which was occupied by Pakistani soldiers. तो जो प्लेस हमारा था जो उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, हमारे 8 सिख जवान ने बहुत ही स्ट्रांगली ब्रेवली वर्क किया by just forcing them drive back. नायब सूबेदार Karnal Singh and rifleman Satpal Singh, who were part of the platoon मालूम है ट्रूप ऑफ सोल्जर्स, दैट इज़ जो 8 सिख जवानों के ग्रुप में ये दो जो इम्पॉर्टेंट पीपल थे, ये लोगों ने डिप्लॉयड ऑन द रिवर्स स्लोप ऑफ हेलमेट में चढ़ना बहुत मुश्किल है पर वो लोग रिवर्स चढ़ के आके इन पाकिस्तानी सोल्जर्स को सेटबैक दिया, वैसे ही हराया. शोड एक्सेप्शनल करेज, कोई ऐसा नहीं करेगा जितना उन्होंने साहस के साथ. वो माउंटेनरी एरिया, लाइट नहीं है, सोचो बैड वेदर है, नथिंग कैन बी विजिबल, बट स्टिल दे आर फाइटिंग फॉर आवर मदरलैंड. दे आर मूविंग बैक एंड स्टिल दे आर, इट्स अ स्लोप, रिवर्स स्लोप है हेलमेट पर, उस स्लोप पे भी वो चढ़ के लड़ना और गेटिंग द गैलेंट्री दैट इज़ ब्रेव, किस तरह लड़ना और जीतना विद अ करेज. इट्स अ ग्रेट हैट्स ऑफ टू दीज सोल्जर्स. इन वन ऑफ दिस काउंटर अटैक्स कैप्टन कर्नल शेर खान ऑफ द पाकिस्तान आर्मी वॉज किल्ड. सबसे ज़्यादा विक्ट्री तब हुआ जब ये काउंटर अटैक्स में पाकिस्तानी सोल्जर का जो कैप्टन था ना कर्नल शेर खान पाकिस्तानी आर्मी का, उसका डेथ हो गया. ठीक है, he died. Our Indian soldiers fought in such a way that they were able to give a counter attack and kill the main captain of Pakistani army, Colonel Sher Khan. His body was subsequently handed over to the Pakistani authorities. तुरंत उसके बॉडी को पाकिस्तानी हेड ऑफ अथॉरिटीज़ को सौंप दिया गया. They were given back their bodies. Other bodies of the Pakistani soldiers found scattered around the battleground. आप पिक्चर देख सकते हो कि किस तरीके से उनके बॉडीज़ को स्कैटर्ड हो गए थे. हमारे इंडियन सोल्जर्स ने उनके बॉडीज़ को कलेक्ट करके उनको बराबर से रिचुअल वाइज उनको बरी किया. ये भी एक ग्रेट थिंग है कि डेथ के बाद भी आप देखोगे उनको ऐसे उनके बॉडीज़ को स्कैटर्ड नहीं, फेंका नहीं गया, बल्कि उनके बॉडी को प्रॉपरली बरीड किया गया विथ honor and respect because they are also the soldiers in that battleground. And this is a great you can see respect we can do say for our Indian soldiers. हमारे Indian soldiers का यही एक बड़ी चीज़ है कि जब तक लड़ाई है उसके बाद of course you can see soldiers, Indian soldiers are very strong people. So Indian soldiers आप देखोगे वो लोगों ने जितने पाकिस्तानी soldiers का डेथ हो गया था उनको प्रॉपरली बरीड किया, उनके बॉडीज़ को कलेक्ट करके appropriately it was buried. And these efforts was done by even our soldiers. Okay, so that's a great humanity shown by our Indian soldiers. Next paragraph of page number 57.
In Delhi, I had remained anxious all through. In Delhi, I means who? जनरल वेद प्रकाश मलिक को बहुत टेंशन था कि क्या हो रहा है बॉर्डर पे, स्पेशली कारगिल वॉर में क्या होने वाला है. एंड ही वॉज सो वरीड कि वो नाइट 3 जुलाई को सोए ही नहीं. ही वॉज सो एंशियस दैट व्हाट विल हैपन, और बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द हेड ऑफ द मिशन, और वही सारा डायरेक्ट कर रहे थे. और पर वहाँ कारगिल हिल पे, स्पेशली आप देखोगे टाइगर हिल पे इतना एक्यूट सिचुएशन था, मतलब कुछ भी ना लाइट ना बैड वेदर वॉज देयर, नथिंग वॉज देयर, एंड स्टिल आवर सोल्जर्स वर डूइंग. तो कम्युनिकेशन भी नहीं बराबर हो पा रहा था वो पर टाइम पे. सिर्फ मीडिया जितना शो कर रही थी कि वॉर हो रहा है, लड़ाई हो रही है, यही चीज़ उनके पास आ रहा था. तो जनरल वेद प्रकाश मलिक को बहुत टेंशन होने लगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग किशन पाल GOC, दैट इज द जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडर, 15 कॉप्स के साथ रैंक अप एट 600 आवर्स वॉर का हो गया, टू इन्फॉर्म मी दैट 18 ग्रेनेडियर्स हैड कैप्चर्ड टाइगर हिल टॉप. ये अंडरलाइन करो, ये मीनिंग है कि कृष्णपाल जो जनरल ऑफिसर ऑफ कमांडर थे, 15 कैप और यू कैन सी कमांडोज के साथ बहुत ही स्ट्रांगली वीरता के साथ ये मैसेज पहुंचाया कि हमारे 18 जवान, स्पेशली 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख पीपल पूरी रात भर लड़ाई करके फाइनली जो टाइगर हिल पाकिस्तानी soldiers had captured, our Indian soldiers were easily able to recapture the Tiger Hill top. Also that heavy fighting, बहुत जोरदार लड़ाई हुई, so many people lost their life. After consulting him and Nirmal Chandra Vij, we decided to await confirmation from the GOC 8 Mountain Division. फिर भी बिकॉज जनरल वेद प्रकाश मलिक वॉज हेड, उन्होंने और भी लोगों और जो जवान वहाँ पे थे असाइंड फॉर द मिशन, लाइक निर्मल चंद्र विज and another GOC, that is general officers commandos, उनसे भी क्लियर किया कि whether this news is confirmed clear and really we won the Tiger Hill top and recapture the Tiger Hill top or not. After confirming this news, you can see, then you can see he was still then he felt happier, and it was a mission where lots of hard work is required by our Indian soldiers. So आप देखोगे मोहिंदर पुरी जो था, फाइनली उन्होंने जब कंफर्म किया, confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill top. तब जाके हमारे वेद प्रकाश मलिक जो कि राइटर है इस टेक्स्ट के, तब उनको कंफर्मेशन हुआ कि फाइनली वी वॉन द टाइगर हिल टॉप एंड रिकैप्चर द टाइगर हिल. तो मोहिंदर पुरी जो पूरे असाइंड थे ये पूरे मिशन में, सामने से देखा है उन्होंने इस मिशन को, उन्होंने स्ट्रांगली कहा कि हमारे 18 सोल्जर्स के सामने not a single Pakistani soldiers were standing over there. It means our 18 grenadiers were strong enough to recapture the Tiger Hill, and that they had shown in their strong war. I duly informed ब्रजेश मिश्रा जो एंड द प्राइम मिनिस्टर, जो कि सेक्रेटरी को पहले बताया. ब्रजेश मिश्रा कौन थे, प्लीज सी, एक मार्जिन में दिया है. एंड इंडियन डिप्लोमेट एंड पॉलिटिकल हु वाज प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयीज प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फ्रॉम 1988 टू 2004. जो 1988 से 2004 के बीच में आप देखोगे ये पर्सन ने वर्क किया. और इन्होंने स्पेशली जब ये मिशन था तो ब्रजेश मिश्रा आप देखोगे वो डिप्लोमेट थे, और उनको पहले इंफॉर्मेशन दिया, और उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे उनको भी एड्रेस किया, इन्फॉर्म किया दैट फाइनली वी हैड वॉन और रिकैप्चर द टाइगर हिल विच वॉज एक्चुअली टेकन अवे बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स और मिलिटेंट्स. ओके, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 1000 hours. आप देखोगे पूरा 1000 आवर्स का ये पूरा मिशन चला, जिसमें अब जैसे उनकी जीत हो गई, जैसे हमारे इंडियन सोल्जर्स की जीत हो गई, जीत होने के बाद अब टाइम था पूरे विश्व को, पूरे वर्ल्ड को और हमारे देश के ऑल द पीपल शुड नो द ब्रेवरी, the gallantry, the courage shown by our Indian soldiers. So उनको एड्रेस करना था मीटिंग प्रेस को, that is media, through media they want to tell to all the people that we had, our Indian soldiers had recaptured the tiger land.
The defense minister was on his way to Amritsar. Defense minister भी उसी समय अमृतसर की तरफ आ रहे थे. When he landed at the airport, I gave him this exciting news. जब उनको ये पता चला तो मैंने ये जब exciting news दिया, I was very excited. It means I means General Ved Prakash Malik, who was the writer of this text, is saying मैं इतना excited था कि ये news मैंने उनको दिया और वो सुन के वो भी बहुत excited हो गए. And all are coming for the press meeting. Press meeting मतलब एक साथ आके लोगों को सबको बताना, कम्युनिकेट करना थ्रू मीडिया कि फाइनली जो टाइगर हिल हमने कैप्चर जो हमसे चला गया था हाथ से बाय पाकिस्तानी सोल्जर्स, वो अब हमने वापस से रिकैप्चर कर लिया है. तो ये इंसिडेंट उनको बताने के लिए ही रियली केम बैक. नेक्स्ट पैराग्राफ 57 page number, second last para. The date 4th July 1999 was important for one more reason. 4th July को और एक रीज़न से बहुत इंपॉर्टेंट था. तो क्या था, चलो देखते हैं. नवाज शरीफ, आप देख सकते हो पिक्चर में, वॉज ड्यू टू मीट द यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन. नवाज शरीफ को जो यूएस का जो प्रेसिडेंट था ना बिल क्लिंटन, उससे मिलने का था. वो दिन था जिस दिन वो दोनों मिलने वाले थे. अबाउट 10 to 15 hours बिफोर देयर मीटिंग वी हैड sure that the whole world came to know about the recapture of the Tiger Hill and thus likely overcome of the war. आप देखोगे 4th जुलाई 1999 को नवाज शरीफ वॉज अबाउट टू मीट टू द यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन. मतलब मिलने वाले थे, मतलब ऑफकोर्स सो मेनी टाई अप्स होने वाले थे वेयर president of US, that is Bill Clinton, is going to help to the पाकिस्तान. पर जब ये पता चला सबको कि पाकिस्तान का एक चेहरा तो है कि वो लोगों में सोशल दिखाता है कि वो कितना इम्पोर्टेंट है, बट सेकेंड फेस जो बहुत ही डार्क फेस है और वो है जो इंडिया के ऊपर इंडिया के लैंड को कैप्चर किया है और इंडिया के कॉमनर्स को कैसे उन्होंने मारा हमारे, और इस पूरे मिशन में हमारे कुछ सोल्जर्स का भी दे हैड डाइड. तो ये सारा इंसिडेंट जब सबके सामने आया, डेफिनेटली यू कैन सी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फेल्ट सो बैड. तो सबको पता चला कि पाकिस्तान का दूसरा चेहरा क्या है. पाकिस्तान जैसे सबको शो कर रहा है कि वो बहुत ही सोशल है, हेल्पिंग टू द पीपल एंड रियली वांट्स द पीस इन द एनवायरनमेंट एंड द नेशन में वो पीस चाहता है. और वो जाके यूएस में भी बिल क्लिंटन को भी बताना चाह रहा था. पर जब सबको पता चला कि टाइगर हिल कैप्चर हो गया पाकिस्तानी सोल्जर्स से और हमारे इंडियन सोल्जर्स विद देयर ब्रेव वर्क दे हैड रिकैप्चर इट, देन एवरीबडी केम टू नो द डार्क फेस ऑफ दीज पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट्स एंड स्पेशली द प्राइम मिनिस्टर हु इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस मिशन, जो हमारे इंडियन सोल्जर्स को टारगेट बनाने में हमेशा रेडी रहते हैं. यस, सो दैट हियर इट हैज़ बीन सेड. सबको पता चला कि ये वॉर क्या था, सबने जानने का और कोशिश किया और मीडिया प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई हैड सेड मीडिया ने सभी को इम्पोर्टेंस बताया कि टाइगर हिल क्या था, कैसे लोगों का डेथ हुआ, कितने लोग का डेथ हुआ, कैसे हमारे सोल्जर्स ने हार्डवर्क करके रिकैप्चर किया. तो जब सबको पता चला तब सबको लगा कि पाकिस्तान इज़ ऑन अ रॉन्ग साइड एंड इंडिया एक्चुअली रिक्वायर्स पीस. अभी तक क्या था, लोग सोचते थे इंडिया को पीस नहीं चाहिए, बट व्हेन दिस इंसिडेंट केम आउट देन एवरीवन स्टार्टेड ट्रस्टिंग टू द इंडियन harmony, peace and you can see the goodwill of the society. Next paragraph of page number 57, last paragraph है. For some time Pakistan even denied the existence of such a mountain feature and labeled the entire operation as a figment of our imagination. कुछ दिनों तक जब ये इंसिडेंट बाहर आया तो प्राइम मिनिस्टर से लेके सारे, यू कैन सी फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर टू द सोल्जर्स एंड हूसोएवर इज इन्वॉल्व इन इट, जितने भी जनरल कमांडर्स थे पाकिस्तान के, सब ने ना बोल दिया. दे सेड वी आर नॉट एट ऑल इन्वॉल्व इन इट. ओके, वी डोंट नो एनी माउंटेनरी मिशन हैड हैपन. हमको कुछ पता नहीं है माउंटेनरी मिशन हुआ भी है कि नहीं, हमारे सोल्जर्स फॉट और नॉट, किसी का डेथ भी हुआ है कि नहीं, हमको कुछ पता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. दिस इज द फेक न्यूज़. इस तरीके से हमारे इंडियन सोल्जर्स को दे हैड शोन दैट दे आर सेइंग रॉन्ग. तो यू कैन सी दे आर सेइंग दैट दिस इज जस्ट द इमेजिनेशन. ये सब गलत बात है. इस तरीके से आप देखोगे पाकिस्तान तैयार भी नहीं था मानने को कि टाइगर हिल जैसा वॉर हुआ जिसमें हमारे सोल्जर्स का डेथ हुआ, जिसमें टाइगर हिल हुआ जिसमें हमारे मतलब पाकिस्तानी सोल्जर्स का डेथ हुआ और पाकिस्तान हारा वहाँ पर. ये सारा थिंग्स वो
ट्रस्ट और लोगों को बताने के लिए तैयार ही नहीं थे, मतलब झूठ बोल रहे थे टू एवरी मीडिया पर्सनल्स. The loss of the Tiger Hill was a hard physical and psychological blow, but पाकिस्तान को पर अंदर अंदर पता था कि टाइगर हिल एज वी हैड लॉस्ट, इट वॉज अ ग्रेट, यू कैन सी फिजिकल मीन्स सो मेनी सोल्जर्स हैड डाइड ऑफ पाकिस्तान, एंड साइकोलॉजिकल इट मीन्स अभी पाकिस्तानी लोग सोच रहे थे कि हम पूरा वो कारगिल का एरिया कैप्चर कर लेंगे और इंडिया को पूरा जम्मू पकड़ के रख लेंगे. पर धीरे धीरे जब इंडियन सोल्जर्स ने अपना ब्रेवरी दिखाया एंड रिकैप्चर द टाइगर हिल एंड कारगिल वॉर, देन दे स्टार्टेड थिंकिंग नो, इंडिया इज ऑल्सो इक्वली गिविंग द counter attacks and is equally strongly standing for protecting our motherland. तब जाके उनको पता चला कि इंडिया भी उतना ही ब्रेव है. इन इंडिया wave of jubilation and relief replaced the gloomy mood of the people. कितने लोगों को बहुत बुरा लगा था जब वो लैंड पाकिस्तानी लोगों ने रिकैप्चर कर लिया था, पर वो ग्लूमी जो दुख होके बैठ गए थे कि वो भी लैंड अब हमारे देश से निकल गया, वो टाइम पे एक जुबलिएशन मीन्स होता है हैप्पीनेस. अंडरलाइन द वर्ड जुबलिएशन. इट इज़ द टाइम फॉर द सेलिब्रेशन. इट मीन्स जुबलिएशन मीन्स सेलिब्रेशन. लोग सेलिब्रेट करने लगे. वाई यू कैन सी द पिक्चर एंड अंडरस्टैंड हाउ द पीपल, हाउ द सोल्जर्स एंड एवरी इंडियन पीपल वॉज चेरिशिंग दिस मोमेंट दैट वी हैड रिकैप्चर्ड द टाइगर हिल एंड एबल टू रिकैप्चर द लैंड ऑफ नियर बाय कारगिल. सो दिस इज़ अ ग्रेट विक्ट्री बाय आर इंडियन सोल्जर्स विच हैड हैपन. ये एक बहुत बड़ा विक्ट्री था इंडियन soldiers के through, and they had shown to the world that India crave for peace, not for war. सबको समझ में आया उस दिन कि इंडिया के सोल्जर्स और इंडियन पीपल सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं शांति और कुछ नहीं चाहते. और अगर हमारे शांति को, आई मीन इफ आर पीस, आर हार्मनी इज बीन डिस्टर्ब्ड, it is definitely going to be bad, like situation you had seen. Our Indian soldiers had given a strong counter attack to the पाकिस्तान. जैसे ही हमारा पीसफुल एनवायरनमेंट खराब हुआ, इंडियन सोल्जर्स बिल्कुल तैयार बैठे हैं हमारे से वो एरिया को रिकैप्चर करने के लिए. मतलब जो लैंड, द लैंड विच बिलोंग्स टू आवर कंट्री इंडिया, इट इज़ गोइंग टू बी इंडियाज ओनली. देर इज़ नोबडी हु कैन सी आवर लैंड. ओके, इफ इट हैपन्स, आवर इंडियन सोल्जर्स आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू गिव देम अ गुड काउंटर अटैक. ये हमको समझ में आता है. नेक्स्ट पैराग्राफ, प्लीज टर्न द पेज नंबर 58, लास्ट पैराग्राफ. Finally, on the 8th July, after the entire Tiger Hill objective had been cleared, पूरा सब होने के बाद भी सोल्जर्स ने हर बंकर्स में जा के चेक किया कि कोई पाकिस्तानी छुपा पड़ा तो नहीं है. तो पूरा जो एरिया क्लीन अप होने के बाद टाइगर हिल का situation established, 18 grenadiers hosted the Indian tricolor on a Tiger Hill top. आप देख सकते हो पिक्चर that these 18 grenadiers who played a great work to recapture the Tiger Hill which was taken away by the Pakistani, and पाकिस्तानी ये भी बोल रहे थे कि ये लैंड हमारा है अब, ठीक है, हमारा ही ज़मीन लेके बोल रहे थे कि ये कि वो उनका है, ठीक है, जबकि वो दैट एरिया बिलोंग्स टू आवर कंट्री इंडिया, वो हमारे इंडिया के बॉर्डर के अंदर आता है. तुम हमारे कैसे बॉर्डर को टच कर सकते हो? तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट मिस्टेक दैट दे हैड डन. ओके, सो इफ़ इट इज़ अ पार्टीशन, अगर एक एरिया का बाउंड्री एरिया पार्टीशन हो गया तो आप किसी के भी अंदर जाके उनका ज़मीन नहीं ले सकते हो, ठीक है. सो पाकिस्तानीज हैड डन द ग्रेट मिस्टेक, सो एंड दे आर नॉट गोइंग बैक ऑल्सो. इंडिया ने बहुत समझाया भी कि आप लोग अपने नेशंस चले जाओ बिकॉज दिस एरिया बिलोंग्स टू आवर कंट्री इंडिया, बट हु लिसन्स? सो दे हैव टू फेस द लॉस. सो दैट हैड हैपन. सो 18 ग्रेनेडियर्स ने फाइनली लास्ट में होस्ट किया ट्राइकलर. आप देख सकते हो इंडियन ट्राइकलर, दैट इज इट इज टेलिंग द फ्लैग. दे होस्टेड द फ्लैग एट द टॉप ऑफ द टाइगर हिल, showing that Indian soldiers are in the world are the best and nobody can touch our Indian soldiers' bravery, confidence, determination, willpower and patience. Throughout this, its tenor meaning is given the act or period of holding an important, especially political position. ये जो पूरा पीरियड में इतनी लड़ाई हुई, हमारे देश के सोल्जर्स ने जो वीरता शो किया टू द वर्ल्ड कि हम किसी से कम नहीं है, हम आर गोइंग टू फाइट एंड रीटेक दैट लैंड. सो ये सब जो हुआ, ये पूरा नियरली ना
2 months long war था, 2 महीने का ये पूरा वॉर था. The battalion means जो troop of soldiers थे acquitted itself with the high professionalism and honor. जितने भी soldiers इसमें involved थे in this mission, they finally returned back with a great happiness and a strong willpower in their eyes that they had recaptured the land taken away by Pakistani soldiers. So they had shown the strong professionalism, and of course they are feeling honored also. Like every Indians are giving them the congratulations and jubilee. Everywhere there is a celebration mood. So that while seeing that the Indian people are supporting their hard work, these people felt so happy, and we have to support. हमको support करना है because we are safe today. We are safe today. The main credit goes to none other than these soldiers who strongly stand at the border, whether it is a bad weather, whether it's a morning, whether it's the evening, whether it's night, and fight for us. So those people who are fighting for us, just think that whenever, wherever the situation comes to help them, to support them, please stand for our Indian soldiers because they require. अगर वो नहीं है तो हम भी कुछ नहीं है. तो उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके वजह से ही आज हम सब सेफ हैं. यस. डिस्प्लेइंग अनशेकेबल डिटर्मिनेशन एंड कलेक्टिव वेलर. ये जो सोल्जर्स ने शो किया ना, इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और वीरता. वेलर मीन्स अंडरलाइन द वर्ड वीरता. All the members covered themselves with glory and notched up. Notched up, it means achieve. Two of the finest victories of the Indian Army. इससे अच्छा विक्ट्री आप देखोगे नहीं जो हमारे इंडिया ने कारगिल में वीरता का प्रदर्शन किया. इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग वेलर, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड विल पावर. एंड वेन एवर यू रीड दिस स्टोरी ऑफ कारगिल, डेफिनेटली देर इज अ गूज बम्स एंड यू स्टार्ट थिंकिंग दैट इवन एज अ स्टूडेंट आई हैव टू डू समथिंग फॉर माई नेशन. आई हैव टू बी अ रियल पर्सन फॉर माई नेशन, एज आर इंडियन आर्मी had shown the great victory. It was the finest victory shown by our Indian Army. After the war के बाद, as the battalion requested a UN mission, army headquarters sent it to Sierra Leone, that is West Africa. There too the battalion successfully carried out a major rescue operation and it was Operation Khukari. ये जो इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ कि अमेरिका भी हैरान रह गया कि कैसे इन्होंने रीटेक किया वो लैंड इंडिया का. भी सैरा लियोन एक प्लेस था साउथ वेस्ट अफ्रीका का, वहाँ पे उनको हेल्प चाहिए था, रेस्क्यू टीम की ज़रूरत थी. तो यही 18 बटालियंस और सिख जवान जो थे, 8 सिख जवान, फिर से वहाँ पे जाके फिर से एक नया ऑपरेशन, जैसे उन्होंने यहाँ पे ऑपरेशन किया था, सेम वे देयर ऑल्सो दे हैड डन ऑपरेशन खुकरी. और वहाँ पे भी यूएन के सोल्जर्स को हेल्प किया टू रेस्क्यू द ऑपरेशन. जहाँ पे वहाँ पे भी सेम ऐसी ही प्रॉब्लम हुआ था. तो हमारे इंडियन सोल्जर्स हैड अगेन शोन देयर ब्रेवरी टू हेल्प टू द यूएन आर्मी people and soldiers. Okay, so that here it has been said. So in this way we had completed this line by line explanation of this chapter. So by this we come to the end of this lecture. I hope you understood the lecture very nicely because I had done the line by line explanation of this chapter and hard words I had given. So read the chapter again one more time carefully because it's very important chapter. Of course you have to write down brainstorming question and icebreaker questions by yourself because I had done the chapter in detail. So brainstorming और icebreakers आपको easily आप solve कर सकते हो. So do it, and in next lecture we will start with the new chapter. So read the chapter very carefully and write down the brainstorming and icebreaker question. Whenever the college will reopen, I am going to check it and enjoy learning. This is Garima Miss signing off. Stay home, stay safe.